السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آزادی مارچ کے حوالے سے اپڈیٹ چیزیں ہو رہی ہیں لمحہ بلمحہ۔ حکومت نے، جس طرح میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا کہ حکومت نے آزادی مارچ کو مشروط اجازت دینے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے ابھی تک کوئی خاص رد عمل نہیں آیا، اور ایک طرف اجازت دی جا رہی ہے، دوسری طرف مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے۔ اس نے کوئی ڈیولپمنٹ مذاکرات کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پروگریس نہیں ہو رہی۔ تیسری طرف پھر کنٹینر لگائے جا رہے ہیں، اسلام آباد کو سیل کرنے کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ رزاق کھٹری صاحب کے ساتھ ہمارے تجزیے چلتے رہتے ہیں، تو آج پھر ان کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے، درخواست کی ہے، کھٹری صاحب سے ڈسکس کریں گے۔ کھٹری صاحب، اجازت جو دی ہے حکومت نے، یہ کتنی آپ کو سیریس لگ رہی ہے؟ اور اگر اسی اجازت کے تحت جو پریڈ گراؤنڈ ہے یہاں تک فرض کریں 50,000 لاکھ 2 لاکھ لوگ آ جاتے ہیں، تو یہ پریڈ گراؤنڈ تک ہی محدود رہیں گے؟ بہت شکریہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ پورے ملک سے مولانا صاحب اپنے آزادی مارچ کے لیے جو لوگ لا رہے ہیں وہ پریڈ گراؤنڈ کے لیے تو لا ہی نہیں رہے، یہ تو بات ذہن میں رہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ جب ایک لشکر ہوتا ہے تو پھر ان کے سامنے یہ کنٹینر شنٹینر بھلے مٹی سے ہی بھرے ہوں، کوئی جو ہے وہ ان کی اوقات نہیں ہوتی، مگر 1,000 لوگ اگر آ کر اس کو دھکا دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ آگے پیچھے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بات تو یہ ایک، تو دوسری بات یہ کہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ حکومت نے ایک ٹیکنک کی ہے نا، وہ یہ کہ جو اعلیٰ عدلیہ نے فیصلہ دیا تھا پریڈ گراؤنڈ میں احتجاج کرنے کا، وہ احتجاج یہ تھا کہ آپ حکومت گرانے کے لیے نہیں آئیں گے، لیکن یہ تو آئی حکومت گرانے کے لیے رہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اصل میں انہوں نے فیس سیونگ کی ہے۔ اور اب ہوا یہ دیکھیں نا، اب ایک انہوں نے جو مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے، اس میں اگر ہم ایک ایک اس فرد کے اوپر اگر بات کرتے ہیں تو مجھے جو لگتا ہے یہ کہ اس میں کوئی اتنی سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آتی، مگر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر جہانگیر ترین اس میں شامل ہوتے، وہ اس کے سربراہ ہوتے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیزوں کو دوسرے طریقے سے دیکھتے۔ ان کے تمام جماعتوں کے اندر ان کے تعلقات ہیں، وہ رواداری قسم کی ان کی جو چیزیں ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حکومت بننے جا رہی تھی تو جو سارا کردار تھا وہ جہانگیر ترین صاحب کا تھا، کوئی عمران خان کا نہیں تھا اور کسی کا نہیں تھا۔ پرویز الہی کو اگر سربراہ بنایا جاتا تو بھی بات سمجھ میں آتی تھی کہ ان کی بھی لوگ ان کی عزت دیتے ہیں، ان کی بات سمجھتے ہیں نا۔ چودھری شجاعت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ان کی صحت انہیں اجازت ویسے نہیں چودھری شجاعت کی سربراہی میں کمیٹی، مذاکراتی کمیٹی قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواب اکبر بگٹی سے مذاکرات ریاست نے کیے تھے تو چودھری شجاعت کو بھیجا تھا، لال مسجد والوں کے ساتھ مذاکرات کرنے تھے تو چودھری شجاعت کو بھیجا تھا، ایک دو اور بھی ڈسکس ہوتا رہا ہے ہمارے دوستوں کے ساتھ کہ چودھری شجاعت کے مذاکرات کا نتیجہ نہیں سر، نہیں اس طرح آیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی اچھا نہیں آیا؟ نہیں، ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کو مذاکرات کے لیے بھیجا تھا نا، وہ مکر گئے تھے۔ اوکے، معاملہ چودھری دیکھیں نا، ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک فریق چودھری شجاعت وزیردار آدمی ہے، بات کرنے کے لیے جب کوئی تیار نہیں ہوتا اور آپ انہیں راغب اس بات پر قائل کرتے ہیں، وہ آپ سے بات کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ جب باتیں ہوتی ہیں تو دو لینے دو چھوڑنے والی باتیں ہوتی ہیں نا، مقصد یہ کہ آپ ضرور کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ اب چودھری شجاعت سے پرویز مشرف نے اگر دغا کی اکبر بگٹی کے معاملے میں یا لال مسجد والے معاملے میں، تو اس میں چودھری شجاعت حسین کی ناکامی نہیں تھی، ناکامی اس حکومت کی تھی جس کے نتیجے میں اتنا سارا نقصان ہوا۔ تو میں واپس دوبارہ اپنی بات پہ آتا ہوں، تو اب یہ کہ جس طرح وہ میرا خیال پرویز خٹک صاحب کو انہوں نے شامل کیا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کا کوئی آؤٹ پٹ دے سکیں۔ چیئرمین سینٹ ہیں، ان کی بھی کوئی ہمیں ان کا کیریئر ایسا تو نظر ہی نہیں آتا کہ ماضی میں کوئی وہ بہت بڑے نیگوشیٹر رہے ہوں، وہ تو ابھی حال ہی میں جو ہے وہ اپوزیشن ان کے خلاف نو کانفیڈنس سینٹ میں موو کر چکی تھی، وہ پھر ان کو بچا کر دوبارہ ان کو نشست جو ہے وہ ان کی بچا دی گئی۔ تو اس صورتحال میں جو سینئر ترین لوگ ہیں، حکومت ان کو اگر کرتی تو ہمیں اندازہ ہوتا کہ ان کی کوئی نیت ہے معاملات طے کرنے کی۔ اس ساری صورتحال میں جو مجھے بات نظر آ رہی نا، اب دیکھیں نا، یہاں ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر حکومت چاہتی، سنجیدہ ہوتی، تو ضرور ایسے لوگ وہ منتخب کرتی جن میں کوئی مولانا کو یا
दीगर जो सियासी जमातें हैं उनको वो कायल करते ताकि वो मौलाना को कहें कि वो बात सुने। एक तो ये, दूसरा ये कि मौलाना कहते हैं कि भाई वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लेकर आएँ। मुज़ाकराती कमेटी ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ज़ाहिर बात है वहाँ से मुतालबा है, यहाँ से जो मुज़ाकराती कमेटी वो मुतालबा मुस्तरद करती तो इसका मकसद बात नहीं होगी। दूसरा इशू ये है कि आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज़म सवाती साहब की, मैंने ही उनसे सवाल किया कि जब आपका धरना था तो ये तासुर था कि उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी, तो मौलाना के धरने के पीछे कौन है? तो उन्होंने रिवायती सा जवाब दिया कि इसके पीछे तो जो है वो मोदी का बयानिया है, मगर वो इनडायरेक्ट वो कह रहे थे कि वो उनका एजेंडा लेकर यहाँ आ रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं कि ये जो जनरल बाजवा के जो मुतासरीन हैं उनकी तो मूव कही जा रही है। हालांकि मौलाना के पास अगर मोदी का मौलाना एजेंडा लेकर चल रहे हैं, बयानिया लेकर चल रहे हैं, फ़र्ज़ करें तो ये आज़म सवाती खुद मौलाना के बयानिए के साथ किसी दौर में रहे हैं। यार ये सियासत तो बड़ी जालिम चीज़ है ना। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये ऐसे अजीब लोग हैं कि वहाँ से निकलते हैं, इस कैम्प में आते हैं, उनको गालियाँ दे रहे थे। उसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो फवाद चौधरी भी है, डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की। मगर ये कि देखें ना, मैं आपसे इख्तलाफ करूँ, मेरा आपके साथ ताल्लुक़ है, मैं आपसे इख्तलाफ करूँ और वहाँ दूसरी जगह जाकर मैं आपके खिलाफ बोलूँ तो लोग मुझे कहेंगे कि यार कल तो आप उनके साथ शो में बैठे हुए आज ये बात कर रहे हैं। तो ये जो रवादारी होती है ना, ये रवादारी जो जब सियासत में ख़त्म होती जा रही है तो उसके असरात आपकी सोसाइटी भी पड़ते हैं। तो ये मौलाना का जो मार्च है, अब मुझे ये लग रहा है जिस तरह हुकूमत ने कोशिशें की हैं कि 200 से ज़ायद मुख्तलिफ शहर के इलाकों में कंटेनर रख दिए गए हैं, अटक को सील किया जाएगा, इधर जीटी रोड को किया जाएगा, यहाँ से मरी की तरफ से जो सड़कें आ रही हैं वहाँ किया जाएगा। लेकिन मौलाना के तो जो रिपोर्ट हुआ है वो तो ये कि 10-15 हज़ार से ज़्यादा लोग तो उनके पहले इधर आ चुके हैं, बाकी कोई भी ना पहुँचे ना। अगर यही लोग जो हैं 10-15 हज़ार लोग डी चौक पर आ जाएं तो वो ये रिपोर्ट हो चुकी है। अगर आप ऐसा करें कि कल प्रेस क्लब के सामने जो मदरसे का पार्क है ना, कल शाम को आप 4-5 बजे उधर चले जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने मौलवी हज़रात वो तो उधर होते हैं, डेली होते नहीं, इतने होते हैं, लेकिन उसमें अब ज़्यादा नजर लेकिन व्यूअर्स ये खट्टी साहब बड़ी खबर दे रहे हैं कि ये रिपोर्ट हुआ है कि आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए JUI के 10-15 हज़ार कारकुनान तो इस्लामाबाद रावलपिंडी में पहुंच चुके हुए हैं, ये रिपोर्ट हुआ है। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे लिए भी कम अज़ कम, और आपके लिए भी होगी। तो अगर वाकई इस तरह है तो आप समझ सकते हैं कि आज़ादी मार्च में कितने लोग शरीक होंगे। लेकिन यहाँ एक और सवाल आपको उठाना पड़ेगा, वो ये कि क्या मौलाना का कभी कभार आप भी खुद भी उठा लिया सवाल लेकिन आप देखें ना कि मौलाना का ये मार्च कामयाब होगा या नहीं होगा। कामयाब होगा, जो वो मुतालबा ला रहे हैं इसका मतलब पूरा होगा तो कामयाब होगा। अगर कामयाब नहीं होता और वो वापस चले जाते हैं तो उनकी सियासत पे क्या असरात होंगे। ये एक बात आप जहन में रखें जो मेरा अंदाज़ा है। मेरी मुख्तलिफ अपोजिशन के लीडरों से बातचीत हुई है जो मौलाना के साथ हैं। एक जो शक है ना वो तमाम जमातों के अंदर मौजूद है। जिस तरह हुकूमत या दूसरे जो हलके हैं ये तासुर दे रहे हैं कि मौलाना के पीछे डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट नहीं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हलके उनके साथ हैं। वो कहते हैं कि अगर इस तरह भी है तो भी हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे। ठीक है ना। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि लाहौर में शहबाज शरीफ ने जो अपनी पार्टी का इजलास था उसमें उन्होंने आज पहली बार ये कहा है कि इमरान खान को जिस तरह इदारों ने इतनी सपोर्ट की उसका अगर 10% भी हमारी मदद करते तो हम पाकिस्तान को आसमान पर पहुंचा देते। तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ नहीं कर सकती, मकसद इनडायरेक्ट वो इस्टेब्लिशमेंट की कुव्वत को कबूल कर रही है। वो असल में उनका कहने का मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट उनको तंग करती रही है। जब आप एक काम करना चाह रहे हैं और आपको मैं तंग करता रहूं तो आपकी सलाहियतें यकीनन डिवाइड होंगी, आप अपना दिफा भी करने में मसरूफ़ होंगे, उधर अपना काम भी कर रहे होंगे, तो ये एक डिस्टर्बेंस होती है। वो उसका मतलब मुझे जो समझ में आया ये आप एक बार ऐसा कीजिएगा, हम पाकिस्तान में प्रो इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जो जमातें हैं उस पर एक प्रोग्राम करें, ठीक है, ताकि उसमें इसमें डिटेल में बात करेंगे ठीक है कि कौन किसके साथ है ना। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ना वो ये है कि एक तरफ हुकूमत
खुद ये चाह रही है कि अपोजिशन के अंदर दरारें डाले। मेरा ख्याल है कि ये जो आज़ादी मार्च की इजाज़त है ना, वो भी उन्होंने इस सेंस में दी है, और आने वाले दिनों में भी आप देखिएगा कि वो कोशिश करेगी कि इस तरह का जेस्चर देगी ताकि अपोजिशन के दरमियान जो है वो दरारें पड़े। एक तो ये है। दूसरा ये कि अपोजिशन, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी, मौलाना, उसके पीछे कौन है, लेकिन क्योंकि ये एक बिल्कुल वाज़ेह तासुर मुख्तलिफ हलकों की तरफ से दिया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इतनी कुव्वत से पहली बार मौलाना आ रहे हैं, कभी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये एक सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो क्या मौलाना कोई बड़ी सौदेबाजी करेंगे? तो किस तरह करेंगे? मगर ये कि एक तासुर ये दिया जाता है कि बलूचिस्तान की हुकूमत उनको दी जाएगी, लेकिन JUI की इतनी सीटें तो उधर हैं नहीं कि उनको मिल सके। पख्तूनख्वा में PTI जो है वो बहुत ज़बरदस्त अक्सरियत में, हुकूमत के पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब जो सूरत हाल है, बिलावल भुट्टो वाज़ेह कह चुके हैं कि हम इस वज़ीर आज़म को तो हटाना चाहते हैं, इस हुकूमत को नहीं हटाना चाहते, क्योंकि हम इलेक्शन इस्लाहत चाहते हैं ताकि जब नए इलेक्शन में जाएं तो वो इस्लाहत हो चुकी हों। मुस्लिम लीग नून कहती है कि ये हुकूमत चली जाए, लेकिन जिस कंडीशन में इस मुल्क इस वक्त हम मौजूद हैं, क्या नून लीग को अगर अक्सरियत मिल भी जाती तो वो निकाल लेगी? नहीं निकालेगी। तो इसका मतलब आप ये बात ज़हन में रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों नहीं चाहती, वो सिर्फ ये चाहती हैं कि वज़ीर आज़म जाएँ, वज़ीर आज़म जाएँ या वो जाएँ जो उनके पीछे हैं। अच्छा, आखिरी बात ये मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो इजाज़त दी गई है मशरूत, आपको लग रहा है, नज़र आ रहा है कि हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी? कंटेनर जो रखे गए हैं चौक चौराहों पे, ये रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, गिरफ्तारियां नहीं करेंगे, कोई रुकावट नहीं डालेगी? अगर नहीं डालेगी तो ये क्या जो सीन बनाया जा रहा है कंटेनरों का, ये क्या है? नहीं सर, कंटेनर तो देखें ना, ये क्योंकि इस्लामाबाद पाकिस्तान के बाकी शहरों से थोड़ा मुख्तलिफ है ना, बाबुओं का मस्कन है, आपके सफ़ीर इधर होते हैं, दुनिया की जो बाकी लोग हैं वो अपने अपने मुल्कों की यहाँ नुमाइंदगी रह रहे होते हैं, तो कोशिश तो करेंगे कि इसको डिस्टर्ब न किया जाए, लेकिन जाहिर बात है आप जहाँ भी एक कंटेनर रखेंगे तो पूरा शहर डिस्टर्ब हो जाता है। अगर सिग्नल की लाल बत्ती जलती है तो ट्रैफिक जाम हो जाती है, अगर कोई गाड़ी का टायर बस्ट हो जाए तो सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है ना। तो ये तो आप समझें कि होगा, और मेरा ख्याल ये है कि 31 से पहले आपका शहर जाम हो जाएगा, उससे पहले ये पकड़ दकड़ करेंगे। रवादारी की चीज़ इनमें से मुझे नज़र नहीं आती, ये इनका मिजाज आमराना है, ये कोशिश करेंगे कि सियासी तरीके से हल करने के बजाय इसका कोई और तरीका निकालें। और मेरी जो इतलात हैं वो ये हैं कि ये इन्होंने सिर्फ ज़बानी कलामी और जमा खर्च जो पूरा करने के लिए कमेटी बनाई है, लेकिन उनको कह दिया है पिंडी वालों को कि आप जाने, आपका जाने काम जाने, इनको आप देखें। चलें, बहुत शुक्रिया खट्टी साहब, थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी, तजिया आपने सुना, और मैं अख़ज़ कम अज़ कम चीज़ें ये कर रहा हूँ, जो खुलासा मैं निकाल रहा हूँ कि PTI ने अगर इजाज़त देने का हुकूमत ने फ़ैसला भी किया है तो इन पे भरोसा करना कोई अक्लमंदी को नहीं होगी, क्योंकि अभी तक इन्होंने जो ऐलानात, वादे, जो भी कमिटमेंट किए हैं, कोई एक भी पूरी नहीं की। अगर की है तो व्यूअर्स जो है मेरे मोअज़्ज़ज़ वो कमेंट में बता सकते हैं, मुझे गाइड कर सकते हैं कि ये वादे ऐलानात हुकूमत ने पूरे किए हैं। तो ये अपोजिशन भी ये समझ रही है कि हुकूमत पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपोजिशन ज़्यादा समझ रही है। तो बहरहाल जो भी इस हवाले से अपडेट्स आती रहेंगी वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।